Hello, welcome back to my accounting class, The Master's World. Your thumbs up to like the video and subscribe the channel. Now, my dear, here we are talking about basic accountants. In my previous classes, I have discussed some accounting terms like business transactions, liabilities, capital, drawings, etc. Now, in this class, we are learning only the term assets. What do you mean by assets? Simply the properties which are having some value in the terms of money, or we can say which can be measured in the terms of money, means having some worth, value. Worth means प्रति लाख किसी की हो, that is called asset. Any property or the legal rights. When you are talking about the legal rights, means special rights many times you get. For example, for writing any text, you get when the text registered is called copyright, and some amount you have to pay. That's why it is called asset, means copyrights, patents, trademarks. An example, if your company is automobile company and it's creating some designs for the car, whatever the design is, it got registered in the name of the company. Now this design is not being copied by anyone, and to get the design registered, some amount you have to pay. That's why it is called asset, and this is called patent, that you have got patent the design, and copyright, patents, trademark. This is a trademark of Thumbs Up. It has been registered by the Thumbs Up company. I think is a product of Coca-Cola. It has been got registered. Now no one can copy it. No one can use it without the permission of the company. For getting the registration of this mark, some amount has to be paid. Some value has to be paid. That's why it is called asset, and it is a trademark of the company. Now the brand mark of Thumbs Up is the trademark of the company after getting the registered. So we can say the legal right. Here the company may have the legal rights that no one is going to use it, copy it, etc. without the writing permission, without the legal permission of the company. Assets. And the properties like car, building, furniture, machinery, etc. These are the properties owned by the business, means the business should be the owner in the paper, legally owner, and can be measured in the terms of money, means having some value in the money. I repeat again, कोई भी property, car, land, building, machinery जिसकी money में measure की जा सके value, asset कहलाती है. Legal rights, कि आपने कोई टैक्स लिखा, पोएम लिखी, कोई लीगल लिखा, उसे कुछ भी लिखा हो, व्हाटएवर टैक्स मैसेज, और आपने उसको रजिस्टर्ड करा दिया तो कॉपीराइट कहलाता है, और रजिस्टर्ड कराने में खर्चा जाता है जब आप ये बन जाएगी असेट, कॉपीराइट. आपने कोई डिज़ाइन बनाया, फॉर एग्जांपल ये मार्केट का डिज़ाइन आपने बनाया है, इसमें कुछ आपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी इसमें यूज़ किया है, आपने उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया कि आपकी बिना परमिशन के कोई इस टेक्निक को, इसके फीचर्स को यूज़ नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा. तो जब आप इसको रजिस्टर्ड करा लिया, कहलाता है पेटेंट कराना. तो ये लीगल राइट है कि कोई आपकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं करेगा, केवल आप ही उसका फायदा उठाएंगे. तो ये लीगल राइट्स कहलाते हैं असेट्स. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर नोइंग दिस, वी आर कमिंग ऑन द टाइप्स ऑफ असेट्स. First, tangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen or touched, or seen and touched. For example, tangible assets: car, machinery, furniture, land, building, etc. These are the tangible assets. These can be seen and touched also. But what about intangible assets? These properties may be included in the terms of tangible assets. But when we are talking about intangible assets, These are the patents.
कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क means which cannot be seen or touched, called intangible assets. Intangible assets. There may be some recipe. कई बार मसाले बनाते हैं, उनकी कुछ रेसिपी होती है, वो भी रजिस्टर्ड करा ली जाती है. फॉर एग्जांपल मैगी मसाला, जिस मैगी कंपनी ने जब नूडल कंपनी है मैगी, उसने जब मसाला बनाया है, जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक रेशियो है कि किस रेशियो में क्या चीज़ डलनी है, मिर्च नमक वगैरह वगैरह, तो उस रेसिपी को भी रजिस्टर्ड कराया कि कोई कॉपी नहीं करेगा उसकी बिना परमिशन के. तो ये लीगल राइट्स उसको मिलते हैं, जो कि कहते हैं इंटेंजिबल असेट्स. और आप इसे कह सकते हैं not, or you can say neither seen nor touched. ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है. Intangible assets are those assets which are not having the physical existence. I am going to repeat one word. Tangible assets are having physical existence, and intangible assets are not having physical existence, means they cannot be seen or touched. Or you can say the examples are patents, copyrights, trademark, etc. Now, fixed assets and liquid assets, current assets. Fixed assets, these are not for the purpose of resale. Resale के लिए नहीं होती. Example: land, building, computer, furniture, etc. Fixed assets are those assets which are not for the purpose of resale, or which are not for the purpose of converting the cash within one accounting year. These assets give the benefit to the business for more than one accounting year. More than one accounting year. Use, you can say, or benefit for more than one accounting period. For more than one accounting period. The use of the fixed asset or the benefits for the fixed assets for more than one accounting year. बिल्डिंग ली है बेटा, बिल्डिंग से आप 1 साल 2 साल से ज़्यादा साल में बिजनेस करेंगे और मतलब उस पर तैयारी करेंगे. फर्नीचर है, 1-2 साल के लिए यूज़ नहीं होता, काफ़ी टाइम के लिए यूज़ होता है. वो बात अलग है, अचानक से आपको मजबूरी हो जाए कि फर्नीचर ख़राब निकल गया, बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सेल करनी पड़ गई, व्हाटएवर. बट द पर्पज इज नॉट टू कन्वर्ट दिस असेट इनटू द कैश विदिन वन अकाउंटिंग ईयर. ये पर्पस नहीं होता कि आप कैश में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिसील पर्पस के लिए भी नहीं होती. नेक्स्ट, करंट असेट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश, इनटू कैश within one accounting year. Within one accounting year. When we are talking about the current assets are the convertible to be convertible into cash within one accounting year. For example, cash in itself, cash अपने आप में करंट असेट्स है. बैंक बैलेंस करंट असेट्स है आपका. स्टॉक रीसेल पर्पस के लिए होता है बेटा, स्टॉक रीसेल पर्पस के लिए होता है, कैश में कन्वर्टेबल होता है. 1 साल के अंदर अंदर आप स्टॉक बनाए और बेचने की कोशिश करते हैं तो कहलाएगा करंट असेट्स. बैंक बैलेंस, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके करंट असेट्स के, जो 1 साल के अंदर अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं. इसमें कुछ आपके एडवांस पेमेंट्स भी होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं बेटा. जैसे आपने प्रीपेड कर दिया, किसी कोई एम्प्लॉय आया, आपने उसको एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो यहाँ पर चलता है प्रीपेड एक्सपेंस. ये भी आपके असेट कहलाती है, करंट असेट्स. एनी एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर्स, आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आप उधार माल खरीदते थे या नकद भी खरीदते थे, आज आपने उनको एडवांस पेमेंट कर दिया.
एडवांस बुकिंग करा दिया, ऑर्डर दे दिया और एडवांस कुछ पेमेंट कर दिया, अब ये आपकी करंट एसेट्स कहलाएगी, ठीक है। बट लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स लगभग सिमिलर हैं। यहाँ केवल वही करंट एसेट्स ली जाती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कैश में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जांपल कैश इन इटसेल्फ, कैश प्लस बैंक प्लस बिल रिसीवेबल होते हैं, या चेक्स, हुंडी, डिमांड ड्राफ्ट, जो अपने आप में कैश के ही फॉर्म होते हैं, ये मान के चले कैश की ही फॉर्म है। क्या डिफरेंस है दोनों में? करंट एसेट्स में कैश और प्रीपेड एक्सपेंस का मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन लिक्विड एसेट्स में कैश होगा केवल, प्रीपेड एक्सपेंस को आप अलग हटा देंगे, क्योंकि जिसको आपने सैलरी पे कर दी एडवांस और वो आपको वापस नहीं देने जा रहा, मींस उसको कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो करंट एसेट्स वो कहलाएगी प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर आपका वो काम करेगा एम्प्लॉई और आपका यूज हो जाएगा, उसका बेनिफिट पहुंच जाएगा। लिक्विड एसेट्स का एक और एग्जांपल है गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देना जो कि यहाँ पे तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट फिक्शिशियस एसेट, कल्पना, मान लिया कि यार ये भी हमारी एसेट हो सकती है। These assets neither tangible nor intangible assets, ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, बस मान लिया कि अच्छा ये भी एसेट हो सकती है, मान लो। चलो क्या होती हैं? कुछ हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, हैवी एक्सपेंसेस, हैवी लॉसेस होते हैं, जो आप इस एक अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ नहीं करते। राइट ऑफ मीन्स ऐसा खर्चा या नुकसान जो उसी एक साल में अकाउंटिंग ईयर में आपको नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि जो आपके अकाउंटिंग इनकम टैक्स हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी जो प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये खर्चा आपको आगे तक फायदा देगा। फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक खर्चे, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे, तो ऐसे खर्चे आपको आगे तक फायदा देते हैं। या कोई हैवी लॉस हो गया है जिसे आप एक साल में राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे खर्चे या नुकसान जिसे आप एक साल में राइट ऑफ नहीं कर पा रहे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा या लॉस शो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हर साल करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा दिखाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहलाता है राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करेंगे हर साल थोड़ा थोड़ा, वो कहलाएगी फिक्शिशियस एसेट। Simply we can say those expenses or the losses etc. which cannot be written off in one accounting year and shall be written off in the more than one accounting year called fictitious asset. Hope you have got this topic, and in the next class we will discuss the next accounting terms. Thank you.